be conscious. Please be conscious of what all are you eating. You know, there is only a very simple mantra of being healthy. You all want to know? Are you all with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you want to know the very simple mantra of being healthy? Yes. See, it is just check your plate. Very simple thing. Check your plate. Whether you are a 12 years old child or you are a 55-year-old man or a female, male or a female, whether you are 5 years or you are 55 years, check your plate. क्या खा रहे हैं? Check your plate. Check the labels of the packed food you are eating, right? And connect with nature. If you want to be healthy, one thing, check your mind, sorry, check your plate. Second thing, connect with nature. Go and see the sunrise, the sunset. Spend 15 minutes in any park near green areas anytime you feel like, right? Join any physical activity. It can be walk, it can be brisk walking, it can be volleyball, it can be swimming, any damn physical activity. And last but not the least, take charge of your own health. Be responsible for your health. Can we all be responsible? When we are responsible for our class tests and we want to pass the class and get good marks, and we all are career oriented, we take our responsibility. Can we all be responsible for our health? Can we all? This is the same body we have to live in for years. जब तक हम जिंदा रहेंगे हम इस बॉडी में रहेंगे, राइट? सो नन्नू, जब तक हम इस बॉडी में हैं तब तक हम जिंदा रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे. ये हमारा मोटिव होना चाहिए. ये हमारा तो नहीं है. Okay, so I have given name, I have deviated the name of this PPT. Junk food, a way to disease life. Healthy food, a way to happy life. And I would want all of you to register that we don't want to be a couch potato. So please don't be a couch potato and get rid from obesity and overweight. If you're obese or you are becoming overweight, believe me, all diseases will come one after the other. They all are brothers and sisters. They all are friends. If one comes, the other one will come definitely. So please take care. Take charge of your own health. Take responsibility for of your own health. First parameter. We have the parameters for physical health, but alas, we don't have the parameters for mental health, right? So mental health is equally important when we talk about health because we don't have the parameter for mental health. So physical health, check your parameters, whether it is a child or a person of my age or a person of say 50, 55 plus, any age. Get your 3 months sugar levels checked. I emphasize on 3 months sugar levels, that is called HbA1c. If it is on the borderline, please improve your diet. If it is above, then again consult a doctor or a dietitian. If it is below, you need not to worry. This is the one parameter which every person on this earth should know. इसको हम 3 महीने की शुगर लेवल्स कहते हैं. कई बार सुना ना, लोग कहते हैं यार सब कुछ ठीक ही था, पता नहीं एकदम से शुगर हो गई मुझे. एकदम से हार्ट अटैक, एकदम से शुगर कभी नहीं होता. Body prepares itself for years to have heart attack, to have blood sugar. So ये 3-3 महीने के पैरामीटर से हम जान लेते हैं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स क्या हैं और हम कहाँ जा रहे हैं. पुरानी जो रिपोर्ट्स हैं उनसे अपनी नई रिपोर्ट्स को कंपेयर करिए और जानिए आपका क्या लेवल है, राइट? सो meaning a very lazy person who sits on a couch, keep watching television all day or doing nothing and just eating, popping up everything, eating like a pig, or sorry, like any other animal, while sitting in a single position, will become a couch potato sooner or later. That after 3 months, I will be losing 5 kgs, or I will be gaining 2 kgs, or I will be losing 5 inches. So you all should have a target for your health. When you all are career oriented, you have a target for your career, then why not for your health?
You have to live in this body for years. जब तक सांस ले रहे हैं इसी बॉडी में रहेंगे, right? So a very lazy person who is sitting on the couch eating mindlessly, I emphasize on the word mindlessly. If somebody who is eating mindlessly will become a couch potato sooner or later. Okay, let food be thy medicine and medicine be thy food. Somebody has rightly said, अगर आप अपना खाना दवाई की तरह नहीं खाएंगे तो आपको एक दिन दवाइयां खानी पड़ेंगी खाने की तरह. अगर आप अपना खाना दवाई की तरह समझकर नहीं खाएंगे उस डिसिप्लिन में, तो आपको एक दिन दवाइयां खानी पड़ेंगी खाने की तरह, राइट? This quote has been written by Hippocrates, the father of medicine, 1,000 years ago. You know, the father of medicine acknowledges the importance of healthy eating, how the nutrients in various foods have healing properties. You all have to pass all subjects. क्लास पास करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स पास करते हैं ना, ऐसे ही हमें सब कुछ चाहिए खाने में, माइक्रो एंड दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. बट सॉरी, we all Indians only tend to eat carbs and carbs and carbs. We forget about proteins, we forget about the micronutrients. If I ask you, how many of you know कि आपका मैग्नीशियम कंटेंट बॉडी में कितना है और कौन कौन सी फूड आइटम्स आपको मैग्नीशियम देती हैं, I'm sure you will be, very few of you will answer me. So ये सब जानिए, पढ़िए, थोड़ा सा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़िए. हमारी बॉडी को सबकी जरूरत है, माइक्रो की भी मैक्रो की भी. तो हमारी किचन में जो रखी चीजें हैं वो हमारे लिए दवाइयां हैं. वो सब अगर हम खाएंगे तो हमें दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी. नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स? ओबेसिटी ग्लोबल प्रॉब्लम है. आप देखिए एज के हिसाब से, इस डायग्राम को देखिए, इस बॉडी टाइप से लेके हम कहां तक पहुंच जाते हैं. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, आप अपनी बॉडी पे तो काम करिए, बाकियों पे तो बाद में करेंगे. अपने इंचेस मेजर करिए, अपना हाइट और वेट जानिए, अपना बीएमआई जानिए. व्हाट इज बीएमआई? बॉडी मास इंडेक्स, weight in kgs divided by height in meters square. So if your BMI is say more than 24, you're overweight, then you're obese. And if it is going low, it means you are underweight. You need to work on it. Worldwide obesity has tripled since 1975. 1.9 billion adults 18 years and older were overweight. इतने लोग दुनिया में ओवरवेट हैं तो बीमारियां तो आएंगी. डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीजेस हैं, आएंगी. 39% of adults aged 18 years and over were overweight in 2016. Most of the world's population live in countries where overweight and obesity kills. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे ग्लोबल प्रॉब्लम है, दैट इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, दैट इज द ओबेसिटी, दैट इज द डायबिटीज, दैट इज द hypertension. Why? Lifestyle disorder. 39 million children under the age of 5 were overweight and obese in 2020. You can see the data. कितने बढ़ रहे हैं हम, कितनी जल्दी हम increase कर रहे हैं. Obesity is preventable. This all is reversible, my dear children, my dear all. This obesity is reversible. What causes obesity and overweight? हमें सबको पता है, बट मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ, याद करा रही हूँ. हम सब जानते हैं कि हम कैसे ओबीस होते हैं, हम कैसे ओवरवेट होते हैं. The fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance. जब इनपुट और आउटपुट मैच नहीं करती, एनर्जी इम्बैलेंस है, कैलोरी इम्बैलेंस है, कैलोरी इनटेक ज्यादा है, कैलोरी बर्न है नहीं, कैलोरी डेपोजिशन है, overweight, right? The fundamental cause is when there is energy imbalance between the calories consumed and the calories we spend. Globally, there has been an increased intake of energy dense foods and that are high in fat and sugars. You all know this. I need not to tell you. Everybody knows these days what our pizzas, burgers and cold drinks and pastas are doing. Everybody knows. I am not saying
you should not eat all these food items. No, I'm not saying. An increase in physical inactivity due to the increasing sedentary nature of many forms of work, changing modes of transportation, increasing the urbanization. ये सारे causes हैं हमारे overweight होने के. एनर्जी ज्यादा ले ली, कंज्यूम की नहीं, खाना ज्यादा खा लिया, बर्न किया नहीं, कैलोरीज खा ली, रोज की एक चॉकलेट खा ली, एक चिप्स का पैकेट खा लिया, जूस भी पी लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, मिल्क शेक, मैंगो शेक भी पी लिया, लेकिन ना तो कोई वॉक करी, ना कोई एक्टिविटी करी, ना ही इतना कोई फिजिकल वर्क किया, ना कोई घर का काम किया, ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी. रिजल्ट ओबेसिटी, ओवरवेट, right? Hence, slowly and gradually, hence the diabetes, hence the high blood pressure also. Other thing is high dense foods. आप सब आजकल जो खाना खाते हैं, मैक्सिमम खाना बच्चे बाहर से खाते हैं. आप एक मील जान के देखिए, आप उसको एवेल्युएट करिए. कोई एक मील जो आपने बाहर से खाई है, आप सब जानते हैं, पिज्जाज खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं. को ये कहती हूँ कि जब आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे, आप उसके लेबल्स को पढ़िए, एक एक इंग्रेडिएंट पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या चीजें हैं. ट्रांस फैट जानिए क्या होता है. वो ट्रांस फैट को बढ़ाने वाली चीजें हैं जो बॉडी से कभी जाएगा ही नहीं. एज आई टोल्ड यू, एक दिन में बॉडी अपने आप को प्रिपेयर नहीं करती. एक दिन में हार्ट अटैक नहीं हो जाता किसी को, एक दिन हाई बीपी शुगर नहीं हो जाता. बॉडी हमें अलार्म बजाती है, बट हम उसको सुनते नहीं है, हम ध्यान नहीं करते, तो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है. सो बॉडी प्रिपेयर्स फॉर ईयर्स हार्ट अटैक के लिए. धीरे धीरे हमारा हाई फूड, जब डेंस फूड हम खाते हैं, जब एनर्जी इनटेक ज्यादा है, फैट ज्यादा है, ट्रांस फैट ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है. जो हमारा ब्लड है थोड़ा थोड़ा थिक होने लगता है. उससे क्या होता है, आर्टरीज में उसका जो फ्लो है वो कम होने लगता है ना. एकदम से सुन लेते हैं, ओह उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको स्टंट पड़ा. व्हाट इज इट? हार्ट अटैक क्या है, कार्डियक अरेस्ट क्या है, आप सबको पता होना चाहिए. ये रियलिटी जिंदगी में हमारे आसपास के बहुत लोगों के साथ होती हैं. जब हमारा खून गाढ़ा हो गया, उसको आर्टरीज में पैसेज के लिए, सर्कुलेशन के लिए जगह नहीं बनी, और इतना गाढ़ा हो गया कि ब्लड में क्लॉट्स आने लगे, हार्ट अटैक. एक बिंदी साइज का क्लॉट, बहुत छोटी सी माथे की बिंदी की साइज का क्लॉट जान ले लेता है इंसान की. आई रिमेम्बर, मैंने फर्स्ट पोस्टमार्टम जो अटेंड किया था, जो देखा था डेड बॉडी को, पोस्टमार्टम जो हम करते हैं, उसमें एक छोटी सी बिंदी के था और उसकी जिंदगी चली गई थी. सो इतना सा भी अगर हमारा हार्ट क्लॉट हो जाता है तो हम मर सकते हैं. तो ये क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में चर्बी बढ़ जाती है, फैट बढ़ जाता है, पानी हम कम पीते हैं, ट्रांस फैट की चीजें हम बहुत खाते हैं. ये जो चिप्स वगैरह की चीजें हैं, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड पाई जाती है, इसमें ट्रांस फैट पाया जाता है, जो इन चीजों को बढ़ाता है. राइट? सो इवन इवन जो भी आउटसाइड फूड है, आपको नहीं पता वो कहाँ बना है, आपने उसका ऑयल हैं, लेकिन डू यू नो वो उस ऑयल को बार बार यूज करते हैं. कायदे से अगर आप घर में कभी पूड़ी बनाएंगे, तो आई रिकमेंड कि जो भी आप ऑयल यूज कर रहे हैं, एनी ऑयल यू आर यूजिंग, उसको एक बार उस टेम्परेचर पे जाने के बाद यूज नहीं करेंगे. एक बार गैस ऑन करके, फुल करके, उसको बहुत तेज करके, जितनी पुड़ियां आपने उतारनी है, बनानी है, घर में फ्राइड खाना बनाना है या ब्रेड पकौड़े जो भी बनाना है, वो बना लीजिए. उसके बाद जब वो ऑयल ठंडा हो गया, उसको रीयूज मत करिए. वो ट्रांस फैट ऐड करता है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है. सो आई रिकमेंड कि उस ऑयल को आप फेंक दीजिए, किसी काम वाली को भी मत दीजिए. प्लीज उस ऑयल को आप रीयूज मत करिए और फेंक दीजिए. एंड माय डियर, यही तेल है जो दुकानों पे समोसों पकौड़ों में बार बार उबलता है, और हम इन्हीं में वो फ्राइड खाना खाते हैं, विच लीड्स टू atherosclerosis, sclerosis, narrowing of the arteries, and high cholesterol. Right? So I hope you understand. So being a doctor, I think I can tell you these things in a better way. अब
हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ओवरवेट तो हो गए आप। आजकल हमारा यूथ ओवरवेट है, हमारी एज के लोग तो लोग, बट स्कूल के बच्चे, since I work in school health program, I have the datas of many of these schools. Even we talk about Bhavan Panchkula, आजकल मेरे पास 9th-10th क्लास के बच्चे आते हैं, मैक्सिमम बच्चे ओवरवेट है, बिकॉज खाने पे कंट्रोल नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मैम बैठे रहना है, पढ़ना है, ट्यूशन जाना है, क्लासेस अटेंड करनी है, फिजिकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, इसको जिप कर सकते हैं, इसको हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं, माइंडफुली खा सकते हैं, कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। यस। सो रेज्ड बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स अगर बढ़ गया तो मींस अलार्म बज गया। मेजर रिस्क फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल जो हम एक दूसरे से नहीं पकड़ते, जैसे हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, which is the leading cause of death since 2012, sorry till 2012। डायबिटीज, बच्चों में डायबिटीज है आजकल, बड़ी जल्दी 40 साल के लोगों को हार्ट अटैक होने लगा, बच्चों का हाई बीपी होने लगा, बच्चों को डायबिटीज होने लगी। क्या है ये सब? खाना। अब अगर वेट बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती है, हार्ट डिजीजेस का रिस्क बढ़ता है, डर बढ़ता है, बीपी बढ़ने का डर बढ़ता है, और बोन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों में आजकल जिससे पूछ लो, यंग लोगों को भी पूछ लो, दर्द है। क्यों? बोन हेल्थ है ही नहीं, धूप में हम घूमते नहीं, वेट हमारे ज्यादा है, खाना हमारा प्योर नहीं, दैट इज वाई। सो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लाइक बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स भी कॉमन हो जाते हैं। कोलोन, ये सारा आजकल रेट ज्यादा है कैंसर्स का। पहले हम कहाँ सुनते थे कैंसर्स? The risk of these non-communicable diseases increases with the increased हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हाई हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गई, हार्ट डिजीजेस हो गया, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, लिवर, हर सेकंड पर्सन का फैटी लिवर है। कोई चेक करा लो। क्यों? सबसे ज्यादा इफेक्ट लिवर पे आता है, क्योंकि उसको सारा डाइजेशन करना है, पानी हम पीते नहीं, खाना हम प्योर खाते नहीं, वी जस्ट ऐड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, वी ट्रीट आवर स्टमक्स लाइक डस्टबिन्स, वेरी सॉरी टू से, वी ट्रीट आवर स्टमक्स लाइक डस्टबिन एंड वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर बॉडी। नाउ ओवरवेट हो गए, मान लो हम में से जो लोग भी ओवरवेट हैं वो हो गए, अब वो क्या करें? वॉट गाइडेंस आई कैन गिव यू एज अ डॉक्टर? कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए हैं, चलिए इस पीपीटी के हिसाब से जानते हैं, देन आई विल एड ऑन। Overweight and obesity as well as their related non-communicable diseases are largely preventable. They are reversible. हम इनको वापस कर सकते हैं। And communities are fundamental in shaping people's choice by making the choice of healthier foods and regular physical activity the easiest choice, and therefore preventing overweight and obesity. बड़ी क्लियरली इजी भाषा में बताती हूँ एज अ डॉक्टर, ओबेसिटी और ओवरवेट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को वे करिए, अपना बीएमआई निकालिए, अपना बीएमआई जानिए। मान लो मेरा बीएमआई 26 या 27 है, 27 है, मैं ओवरवेट हो गई, मैं ओबीस हो गई, मान लो अज्यूम 26 है, मैंने 26 लिख के लगा दिया। अब मैं काम करूंगी कि इस 26 को मैंने नीचे लेके आना है, एक दिन में नहीं आएगा, 3 महीने का टारगेट लेके चलेंगे, 3 मंथ्स टारगेट, ठीक है। अपनी HbA1c 3 महीने वाली शुगर चेक कराएंगे, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे, अपना बीपी चेक करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। उसका एक चार्ट बना के आज की डेट डाल के वेट अपना लिख के, हाइट अपना लिख
EMI लिख के एक टेबल बना लेंगे और चिपका लेंगे। फिर अपने लिए टारगेट सेट करेंगे 3 महीने बाद का, इनसे रिड्यूस्ड वैल्यूज का, वो आप नेक्स्ट लिखेंगे। अब उसके लिए करना क्या है, पहले सबसे पहले जैसे कि इस फोटो में दिखाया मैंने, प्रेजेंटेशन में बनाया, आप अपनी प्लेट को रिप्लेस कर लेंगे। यू हैव टू, आई ऑलवेज से चेक योर प्लेट। आई डोंट मीन कि प्लेट के डिजाइन चेक करिए, आई मीन प्लेट में क्या खा रहे हैं वो चेक करिए। बड़ी प्लेट से छोटी कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप भूखे रहेंगे, नहीं। छोटी प्लेट मीन्स पोर्शन कंट्रोल, राइट। छोटी प्लेट कर लीजिए, बट क्वालिटी खाना खाइए उसमें, ठीक है। आप अपना 1/4 पोर्शन प्रोटीन का जरूर खाएंगे, भरता है, फिलिंग हो जाता है। स्प्राउट्स का खाना खा सकते हैं आप, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ऐसी बात नहीं है सारी सब्जियां घर में अच्छे से बनाई जाए तो स्वाद बनती है। और भूख लगने पे खाना खाइए, ऐसे ही अपने आप को इतना ओवरफीड ना करिए। भूख तो लगने दो, अरे उस अग्नि को काम तो करने दो जो भूख लगाती है पेट में। उस जठर अग्नि को मंद मत करिए, उसको काम तो करने दो। बॉडी को डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज तो करने दो, है ना। तो ऐसे ही अपने अंदर उसको ठूसते नहीं रहना, सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, कि बिल्कुल अपने आप को पाइल अप नहीं करना। भूख लगने पे खाओ, समय पे खाओ, और अपनी प्लेट को चेक करो कि आप क्या खा रहे हैं। प्रोटीन्स बहुत जरूरी क्यों? 1, ग्रोथ, ग्रोथ चाहिए। आप बच्चे हैं उनको चाहिए, जो बड़े हैं उनको वियर एंड टीयर चाहिए। वियर एंड करेगा, प्रोटीन्स करेंगे। वेट लॉस के लिए कौन हेल्प करता है? प्रोटीन करता है, ठीक है। और दिमाग की बत्ती में जगाए रखता है प्रोटीन, सो प्रोटीन डाइट। जो वेजिटेरियन है उनके लिए थोड़ी सी चैलेंज आता है, बट ऐसी बात नहीं है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मार्केट दीज डेज। यू जस्ट हैव टू फाइंड, यू जस्ट हैव टू गूगल, यू जस्ट हैव टू मेक चॉइसेस फॉर योर ओन सेल्फ, राइट। सो आई विल गिव यू द एग्जांपल्स इन द एंड। सो प्लेट में आपके फाइबर, फाइबर सिर्फ हम सैलेड खाने से नहीं ले सकते, हम फाइबर इवन जो आटा है हमारा उसमें चोकर ऐड करके भी ले सकते हैं। जिनको स्टमक की प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन, पानी का इंटेक ज्यादा, इवन फॉर योर स्किन, इफ यू वांट टू ग्लो, पानी पीजिए ना, राइट। हाई प्रोटीन डाइट, especially your nashta. It can be idli, it can be sprouts, it can be besan chila, it is high in proteins. It can be egg, it can be roasted non-veg, right? It can be poha or dalia with peanuts, थोड़े से पीनट्स। इट कैन बी हैंडफुल ऑफ नट्स डेली, जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जो आपके हार्ट को हेल्दी रखते हैं, राइट। सो ये प्रोटीन्स हैं। फाइबर आपको मैंने बता दिया। कार्ब्स थोड़े से कम करेंगे, सारा दिन तीनों टाइम रोटी 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 नहीं, हो सके तो एक मील, मिनिमम 1 मील, मे बी नाश्ता आप रिप्लेस करिए, दलिया, उपमा, पोहा, चिला, इवन अ ब्रेड टोस्ट फिल्ड विद एनी सब्जी और पनीर, राइट। तो ये आप करेंगे। बेशक आप लंच में प्रॉपर रोटी खाइए, रात को आप रोटी खा सकते हैं, ब्रैन रोटी खाइए। अगर आप रोटी नहीं खाना चाहते तो आप में से कई लोग जो जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो रात को सौते वेजिटेबल्स खा सकते हैं या फ्रूट खा सकते हैं। इवन फ्रूट एंड मिल्क कैन बी योर डिनर, राइट। So you have to opt for the choices. Everything is available on Google these days. So check your plate. Eat mindfully, not mindlessly. Mindfully. You are the intelligent being. We are not animals. हमारे में और एनिमल्स में क्या फर्क है? वो सांस लेते हैं, वो चलते हैं, वो भी खाते हैं, है ना। दे ऑल्सो हैव अ हार्ट जो बीट करता है, ब्लड सर्कुलेशन उनमें भी होती है, वो भी देखते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस। फर्क क्या है? माइंडलेसली, कहते हैं ना जानवरों की तरह खाना। दे ईट माइंडलेसली, उनको ये नहीं पता कितना किस टाइम पे खाना है। बट वी आर ह्यूमन बींग्स, डोंट बी एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। जस्ट सी हाउ मच इज टू मच फॉर यू। I am not saying you don't eat junk food, you don't eat fried food, you don't eat pizzas, burgers, pastas, xyz. No, I am not saying you don't eat. Eat mindfully, पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं,
एक स्लाइस ऑफ पिज्जा भी उतना ही आनंद देगा जितना पूरा देगा। पेट भर के मत खाइए उसको, पेट भर के न्यूट्रिशियस फूड खाइए, राइट, न्यूट्रिशियस फूड पेट भर के खाइए। उसके बाद एड ऑन जो खाना है वो आप जंक का पोर्शन खा सकते हैं। सो आई हैव गिवन यू दैट लिवरेज। हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स जरूर मैं चाहती हूँ कि ना पीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा चीनी है, बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर है। You know, dear children and dear all, the surveys say कि आपकी बॉडी को 3 ग्राम से ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है सॉल्ट की। और आप देखिए कि आप कितना सॉल्ट खा जाते हैं एक दिन में। हमने अचार भी खा लिया, हमने पापड़ भी खा लिया, हमने सब्जी में भी खा लिया, हमने सैलेड पे भी डाल लिया, हमने एक चिप्स भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, पॉपकॉर्न्स भी खा लिए, फिर कुछ और बाहर से आ गया वो भी खा लिया, कभी कभार पकौड़ा भी खा लिया। पूरे दिन में नमक कितना गया हमारे अंदर? ओनली 3 grams of salt we have requirement for a day। बाकी क्या है? एड ऑन बाय लव, हाइपरटेंशन। कुछ एज के बाद हाइपरटेंशन हो जाएगी, और 3 महीने की शुगर चेक नहीं करेंगे, कैलोरी इनटेक चेक नहीं करेंगे, रिफाइंड शुगर्स बहुत ज्यादा लेते रहेंगे, तो जो 3 महीने वाली शुगर है HbA1c जिसको हम कहते हैं, उसकी वैल्यूज बड़ी आएंगी। चाहे आपकी फास्टिंग शुगर ठीक आएगी, लेकिन जो 3 महीने की शुगर है उसका ग्राफ आप देखेंगे 3 महीने पहले और वाला वो बड़ा आएगा। इट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स प्री डायबिटिक स्टेज। बहुत गंदी बीमारी है डायबिटीज। ना आप कुछ खा सकते हैं, किडनीज पे इफेक्ट करती है, आईज पे इफेक्ट करती है, रेटिना पे इफेक्ट करती है, दिखना बंद हो जाता है, डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है, कोई चोट लग जाए वो हील नहीं हो सकती, गॉड फॉरगिव कोई सर्जरी करानी पड़ जाए वो नहीं कर सकते, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और डिजीजेस घेर लेती हैं। भगवान बचाए ऐसी डिजीज से। बट इट इज रिवर्सिबल। इलाज किसके हाथ में है? आपके हाथ में। सो कमिंग अप अगेन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये वाला जो फूड है वो कट है। पिछली बार जो एक प्लेट दिखाई गई है उस पे काम करिए, वैसी प्लेट सजाइए। At the individual level, what you can do is limit the energy intake from total fats and sugars. Increase the consumption of fruits and vegetables as well as legumes, whole grains and nuts. Engage in the physical activity for at least 1 hour a day. कोई एक्टिविटी चूज कर लीजिए, इवन वॉक, या कमरा बंद करके हेडफोन लगाइए, जैसे भी आता है डांस करिए, जैसा भी डांस आता है, एटलीस्ट यू आर मूविंग, यू आर शेकिंग। योगा, कैलोरी बर्न कर रहे हो, एनर्जी बर्न कर रहे हो। एनी डैम फिजिकल एक्टिविटी और एनी स्पोर्ट्स, एनी गेम्स। बाय गेम्स आई एम नॉट सेइंग कैरम और चेस, they are for brain. For physical activity you have to exert a bit, right? So this is a food pyramid जिसमें दिखाया गया है कि ये वाली ऑप्शन इतनी चाहिए, ये इतनी चाहिए, ये इतनी। एवरी साइंस स्टूडेंट knows this pyramid, and we all from the education background we have studied this pyramid, right? So ये जो BMI बढ़ जाना, ओबीस हो जाना, शुगर लेवल्स बढ़ जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, इन सब से हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इफेक्ट आता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। There are negative effects of obesity on the reproductive psychology are known, since obese women, females, frequently undergo menstrual irregularities with ovulatory disorders, endometrial pathology, and infertility. They may sound technical to you, but let me tell you, the one very common thing is PCOD. पहले कभी पता भी नहीं होता था पीसीओडी की फुल फॉर्म क्या है। आज किसी स्कूल गर्ल को पूछ लो, एवरी सेकंड गर्ल, मैम आई एम हैविंग पीसीओडी, मैम आई एम हैविंग सिस्ट इन माय ओवरीज, मैम आई एम नॉट हैविंग द रेगुलर पीरियड्स। रीजन? ओबेसिटी। रीजन? इंक्रीज्ड शुगर लेवल्स ऑफ द बॉडी, मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये ठीक नहीं है, वेट ज्यादा है, दैट इज व्हाई। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज अगर फ्रीक्वेंट है, they will lead to infertility in females. So you have to cure it right now, from today. Take charge. Weight reduce हुआ, खाना improve हुआ, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अनलेस बहुत बड़े साइज की सिस्ट है जिसको हम कि हमें मेटफॉर्मिन या कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके ठीक करना पड़ता है। अदरवाइज इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
Male or boys also have the effects on the reproductive health once they are overweight. Male obesity has been linked with the reduction in sperm concentration and motility, an increase in sperm DNA damage, and changes in reproductive hormones. अब प्रिवेंशन क्या है? बता दिया बहुत कुछ मैंने आपको, बट इन अ टेबुलर फॉर्म आई हैव रिटन हेल्दी ईटिंग प्लान. एक प्लान बनाइए अपने लिए हेल्दी ईटिंग का, जिसमें अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर डिसाइड करिए. इन बिटवीन फ्रूट्स की सर्विंग्स, सैलेड की सर्विंग डालिए. एक खीरा कटता है और सारा परिवार खाता है कि हमने सलाद खा लिया. सॉरी टू से, नो. वन खीरा फॉर वन पर्सन प्लीज. वन प्लेट फॉर वन मेंबर ऑफ द फैमिली प्लीज. राइट? आप करके देखिए. आप एक बोल रेडी करिए अपने लिए व्हेन यू आर हंग्री मिड मील या इवन अर्ली इवनिंग स्नैक. आप कुछ मखाने डालिए, आप लेटस लीव्स डालिए, आप उसमें खीरा प्याज टमाटर डालिए, स्प्राउट्स डाल सकते हैं, थोड़े से पनीर के पीसेस डाल सकते हैं, कुछ अनार के दाने डाल सकते हैं. आप खा के देखिए, यू विल लाइक इट. इट्स यम. सो इस तरीके से आपको अपनी ऑप्शंस को रिप्लेस करना पड़ेगा. हेल्दी ऑप्शंस चूज करनी पड़ेंगी, हेल्दी स्नैकिंग करनी पड़ेगी. वाटर इनटेक ज्यादा. अगर आपके अंदर फाइबर इनटेक ज्यादा है, जो मैंने अभी बताया कि सैलेड और फ्रूट इनटेक ज्यादा होगी, तो आपकी जो क्रेविंग्स है ना, जो उठ के आती हैं, अभी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक का मन कर रहा है, मैगी का मन कर रहा है, बर्गर का मन कर रहा है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे. क्योंकि आपके अंदर एक फुलफिलिंग फीलिंग आ जाएगी, जो कि फाइबर से आएगी. एक फुलफिलिंग फीलिंग जिससे आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी. राइट? सो एक प्लान के साथ चलेंगे, हेल्दी स्नैकिंग के साथ चलेंगे, एंड नो गड़बड़. विद योर ओन सेल्फ, नो गड़बड़. इफ यू वांट टू ईट समथिंग, आप कुछ खाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप उसका पोर्शन ले लेंगे. आप रिप्लेस करेंगे उस मील को. आप एक चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, आप उसकी जगह डार्क चॉकलेट का एक पीस खा लेंगे. राइट? आपका पिज्जा का मन कर रहा है, आप ब्रेड पिज्जा बना लेंगे. एटलीस्ट घर पे व्हीट ब्रेड का बना लेंगे, इवन रोटी के ऊपर बना लेंगे. रोटी के ऊपर भी पिज्जा बनता है. आप वो मैदा रिप्लेस कर देंगे. राइट? सो हेल्दी ईटिंग प्लान and regular physical activity. Following a healthy routine with fewer calories is often the first step in trying to treat overweight and obesity. Change your habits. Get up early in the morning. Go for a walk. Play some musical instrument. You will feel good. Mind active हो जाएगा, है ना? कम खाएगा माइंड. जब आपको लगता है कि बहुत क्रेविंग हो रही है, खाने का मन कर रहा है, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करिए. आप यू सिंग अ सॉन्ग, यू डांस, यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और भूख और तलब, इसमें डिफरेंस जानिए कि आपकी बॉडी को कब भूख लग रही है और कब आपकी बॉडी का कुछ मंच करने का मन कर रहा है. अगर तो भूख लग रही है, तो पूरा एक कंप्लीट मील खाइए. एंड आई रिक्वेस्ट, भूख लगने दीजिए तब खाइए. राइट? और अगर मन कर रहा है मंचिंग का, तो एक ग्लास पानी पी लीजिए ठंडा. या जैसे मैंने आपको बताया, मखाने, नट्स, सीड्स, आजकल सीड्स अवेलेबल हैं, फ्रूट्स, फ्रूट्स के ऊपर सीड्स डाल के, बेरीज, ये सब चीजों से आप रिप्लेस करते हैं, तो ये हेल्दी ऑप्शंस है. ठीक है? तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं और वो क्रेविंग्स भी खत्म हो जाती है. भूख में आप पूरा मील खाएंगे और अच्छा मील खाएंगे. क्रेविंग्स में आप हेल्दी स्नैकिंग करेंगे, अनहेल्दी स्नैकिंग और जंक को रिप्लेस करेंगे. हैबिट्स बदलेंगे. वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आजकल सबके फोन पे है, सबके पास आईफोन है. 10,000 स्टेप्स हैं, इतने स्टेप्स हैं. इन प्रोग्राम्स को ऑन करेंगे. वेट लॉस मेडिसिन के बारे में मैं आपको कहूंगी कि मत जाइए, क्योंकि उनका नेगेटिव इफेक्ट है. एक बार हो सकता है वो आपका वेट लॉस कर दे, उसके बाद इतनी तेजी से वेट बढ़ेगा कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे. सो इनमें मत जाइए. नेचुरली, ग्रेजुअली अगर आप वेट रिड्यूस करते हैं, तो आपका वेट बाउंस बैक नहीं होता. रिमेंबर, वेट लॉस डिवाइसेस, आई से कि रादर बेटर एक्सरसाइज. जिम में आप जा सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. बहुत ज्यादा एक्सरसाइज मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगी आज के यूथ को,
यूथ को, बड़ों को कर सकती हूँ, यूथ को, क्योंकि उससे ना कई बार हाइट स्टॉप हो जाती है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। और बहुत विग्रसली नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स नहीं बनते हैं, वरना हम वॉक करते हैं तो मसल्स पे काम नहीं होता। आजकल हर कोई इंसान कहता है सुबह उठ के फटीग है, थकान है, हाय मैम, वर्क प्लेस पे जाने का मन नहीं कर रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स जो है वो यूज अप हो जाते हैं, हमारे मसल्स में एनर्जी नहीं है। मैग्नीशियम नहीं लेते हम, सीड्स लीजिए, पंपकिन सीड्स खाइए, सनफ्लावर सीड्स खाइए, मैग्नीशियम सोर्स है, मसल। खाइए देखिए। आजकल बेरियाट्रिक सर्जरीज अवेलेबल हैं। आई डू नॉट से कि आप सर्जरी में जाइए। इफ योर वेट इज मोर देन 100, यू कैन गो फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। उस बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है, स्टमक को कट करके बांध दिया जाता है, आपका स्टमक छोटा कर दिया जाता है, आपको भूख ही नहीं लगती, आप खाना ही उतना खाते हो, आपको फुलफिलिंग फीलिंग आ जाती है। उससे क्या है, इनटेक कम हो जाती है, इनटेक कम है तो वेट लॉस हो जाता है, राइट। और उसमें हम फैट्स की जो हमारे नीचे टिश्यू के नीचे लेयर है, उस फैट्स की हम लेयर को कुरेद के बाहर निकाल देते हैं। एक बार तो फैट चला जाता है, लेकिन उसके बाद आपको मेंटेन करना पड़ता है। एंड यस, इट इज कॉस्टिंग अ पैकेट, इट कॉस्ट एटलीस्ट minimum 1 lakh to 2 lakh in government hospitals. It is an expensive process. Special diets आप ले सकते हैं, I recommend, but under the guidance of a doctor or a dietitian. और अगर आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, आपकी बॉडी पे काम कर रहा है, तो कर सकते हैं। रेफरेंसेस, यस। मैनेजमेंट, what are the 5 A's in obesity management? Ask, कुछ नहीं आता तो पूछिए, बात करिए, असेस, अपने आप को असेस करिए, क्या वेट है, कहाँ जाना है, प्लान बना के लगाइए, गोल लगाइए, टारगेट सेट करिए, HbA1c कराइए, राइट। अपने आप को जानिए, इंचेस देखिए, ठीक है ना। एडवाइस लीजिए एक्सपर्ट से, डॉक्टर से, डाइटिशियन से, इवन कभी कभी गूगल से, अपने माइंड से, अपनी बॉडी से। अग्री, अग्री कि हाँ, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप धरती पे आए हैं, इस बॉडी को ठीक रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय बाय तो सबने करनी है, बट कब करनी है, ठीक है, ईश्वर के हाथ में है ये चीजें, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में है। हमें कोई बीमारी ना लगे, ये हमारे हाथ में है। 95% इट इज, 99% इट इज इन आवर हैंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो जानेंगे। assist assist your friends in the health management plans, assist yourself to be healthy, assist. So primary care is an important setting for obesity management, yet many primary care providers feel ill-equipped or inadequate supported to address obesity. 5 A's के बारे में बताया गया है, they can guide the process of counseling a patient about behavior change. I can recommend all these things to you as a doctor, since I have a vast experience of around 20 years in the school health program or as at clinics. So cook and eat in good mood. Tell your moms to cook the best. मम्मा को बोलिए या खुद चार्ज ले लीजिए, खुद बनाइए, अच्छे मूड से बनाइए। Take it as a stress buster and cook yourself a meal. Cook yourself a snack. Popcorns. Healthy snacking. राइट, ऐसा करिए। और जो भी खाते हैं, जो भी खाते हैं, आराम से बैठ के, टेबल पे बैठ के, बेड पे बैठ के नहीं, टेबल पे बैठ के खाइए या किचन में बैठ के खाइए, उसको एंजॉय करके खाइए, माइंडफुली खाइए, उसको देखिए, उसको एंजॉय करिए, उसका टेस्ट अपनी टंग और टेस्ट बड्स पे आने दीजिए, एंजॉय करके खाइए। पानी थोड़ा ज्यादा पीना है, राइट। सो रिस्पेक्ट योर बॉडी एंड हेल्थ। सिट ऑन द टेबल। मल्टीटास्किंग खाने खाते हुए नहीं करना, टीवी भी देख लिया, बात भी कर लिया, फोन भी चला लिया, लिख भी लिया खाते खाते, नो। टेक आउट 10 to 15 minutes क्वालिटी टाइम फॉर योर ओन सेल्फ टू ईट। अरे भाई, वाई आर यू ऑन दिस अर्थ? इस बॉडी के साथ ही है ना धरती पे, बॉडी नहीं चलेगी तो रुक जाएंगे। Life can wait. I'm sorry, not life. Friends can wait. Family can wait.
Your workplace can wait, but your body cannot wait. It's aging. It's going towards grave. We have a limited time. We have to live healthy, happy, joyfully, and respect your body. How? By eating good, taking care of it, taking charge of it. बहुत प्योर ट्रीट करिए ना अपनी बॉडी को. कुछ भी हम, जैसे हम कुछ भी नहीं पहन लेते हैं. These days everybody is very conscious. बहुत बेस्ट ऑफ कपड़ा पहनेंगे, प्रेस करके पहनेंगे, नया नया पहनेंगे. तो अपनी बॉडी के साथ इतना मार धाड़ क्यों? कुछ भी हम पेट में डस्टबिन की तरह क्यों फेंकेंगे? प्योर खाएंगे, माइंडफुली खाएंगे, बॉडी का ध्यान रखेंगे. ओबेस हो गए हैं तो उसको नॉर्मल वैल्यूज पे लाएंगे, टारगेट रखेंगे. डेली खाने को दवाई की तरह खाएंगे, सारी सब्जियां खाएंगे, घिया, टिंडे, तोरी, करेले, सब स्वाद बनता है. ऐसी बात नहीं है, भूख लगी हो सब स्वाद लगता है. मम्मा जो घर पे बनाती हैं या सबके घरों में जो बनता है, मेड बनाती है, आप खुद बनाते हैं, जो भी करते हैं, सब खाना है. रोटेशन में खाना है. हमें सब चाहिए. हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन, वाटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सब कुछ चाहिए. एक जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है. कैल्शियम कम हो जाए तो ऐसे क्रिपल हो जाती हैं बोन्स, टेढ़ी हो जाती हैं उंगलियां. सोडियम लेवल कम हो जाए, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है. पोटेशियम कम हो जाए, पैल्पिटेशन बढ़ जाती है. कभी कभार नारियल पानी पीजिए, केला खाइए, इन रोटेशन फ्रूट्स खाइए. 2 दिन केला खा लिया, 2 दिन मैंगो खा लिया, 2 दिन कोई और फ्रूट, सीजनल फ्रूट खा लिया. तो ये सब करके देखिए, ये सब आपको हेल्दी बनाएगा. जस्ट 1 सेकेंड. मैं इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन में हूं, मैं 5 मिनट में कॉल करूंगी, आप मुझे मैसेज कर दो. ये सब करके देखिए. I am really wishing you all a very good health. This is the best I could guide you as a doctor, because I give diet plans also. You know, I have studied the diet and nutrition also. I am a dietitian as well. I work with school children. I work on their weight. I work on their health, and I am a clinical or practitioner too. So I can guide you the best out of my experience. This is your body. Take charge of your body. Take its responsibility, irrespective of your age. छोटे बच्चे को जब से वो जागृत अवस्था में आता है, तब से अपनी बॉडी के बारे में समझाइए और हेल्दी खाना सिखाइए. आजकल मदर्स के पास टाइम ही नहीं है. जो बच्चों को आदतें डालेंगे वो डल जाएंगी. हेल्दी खाना, टेबल पे बैठ के खाना, फैमिलीज इकट्ठे कुक करके इकट्ठे खाना खाइए. टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ. एवरीथिंग इज पॉसिबल. इवन दिस diabetes, blood sugar, BP, this is all reversible. But that remote is in your hand. Check your plate, connect with nature, any sports activity, taking charge of your own health. So wishing you all a very good health. May I have questions, if any? Thank you. Thank you, ma'am. As we bring this enlightening session to a close, let us extend our heartfelt gratitude to Dr. Deepa Puri for sharing her invaluable insights on the importance of growing up healthy, importance of nutrition and hygiene. Your guidance will surely help us make better choices for a healthier future. Remember, maintaining a balanced diet and good hygiene practices are fundamental to our overall well-being. And lastly, I want to say, junk food, a way of decay's life, healthy food, a way to life. Thank you, Dr. Deepa Puri ma'am. Thank you.